Good morning, dear students. So let's start with the new topic of our lesson number 2 in physics, that is device for the measurement of length. In the last video we had discussed about the length, so we have two that we have discussed in the that we have two measuring device for measuring length, that is a meter ruler and a measuring tape. So how we can measure a length with the help of a meter ruler? So let's see a diagram with the help of a diagram. It is a very simple portion. We have a diagram over here. Suppose we have a line segment P and Q, a stick we have, or a rod we have P and Q. So what we'll do to find out the length of this rod, we have to position the one end of this rod at the zero mark of a ruler. Then we have to read the total length of the rod in the scale. So we have three positions. Okay, from this position we are observing the length, so we can see that the length is about 4.4. From this position, if we'll observe again, we can see then it is the length of 4.5 or 4. So what is the correct method to measure a length? We have to look at straight from the upward position. Okay, so it is exactly of 4.3 centimeters. So this is the correct position of measuring the length, not from the sides, from the straight upward position. Okay, okay, we have to see this also. Look at this figure 2.3. Okay, one end, suppose one end of the scale is broken. So what we'll do, we just, that I have explained you in the last video also, we can place the rod at any one position of a scale. Suppose zero mark is not present here, it is broken from here, so we'll keep it at one position and we observe it straight. Yes, it is on 1. Then at the end position, which is actually 4.3, straight we have to see, not from the sides. Okay, then what will we do? We'll minus 4.3 from we'll minus 1 from 4.3, that is 3.3. So total length of this rod comes 3.3 if one end of the scale is broken. Okay, so this, do you know, a meter ruler can be used to measure the thickness of a coin even if it is less than 1 mm. Okay, अगर जो लेंथ उसकी होती है थिकनेस, ब्रेथ ऑफ कॉइन, वो भी हम नाप सकते हैं. ठीक है, फॉर दिस द हाइट ऑफ द स्टैक ऑफ फ्यू नंबर ऑफ कॉइन्स से 10 इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ मीटर रूलर एंड द थिकनेस ऑफ द कॉइन इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द हाइट विद द नंबर ऑफ कॉइन इन द स्टैक. कैसे करेंगे? सपोज हमको एक कॉइन की थिकनेस कितनी है, कितना मोटा है वो कॉइन, देखा है ना आपने, जो कॉइन होते हैं नॉर्मल हमारे पास करेंसी, तो आप उस सेम करेंसी के, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक 5 रुपीज़ का कॉइन लेंगे, नेक्स्ट वी आर टेकिंग अ 2 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ कॉइन, क्योंकि सबकी थिकनेस अलग अलग होती है. सो सपोज आपने 10 कॉइन ले लिए 5 रुपीज़ के. ठीक है, 10 कॉइन्स ले लिए, उनका एक स्टैक बना लेंगे आप, मतलब एक के ऊपर एक रख लेंगे. फिर आप उसकी टोटल थिकनेस नाप लेंगे एक मीटर रूलर से. ठीक है, फिर जितनी उसकी टोटल आएगी उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो एक की निकल जाएगी ना, तो दैट वी कैन डू. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ मेजरिंग टेप. तो मेजरिंग टेप मीन्स अगर हमको थोड़ा लंबा डिस्टेंस नापना है, ये चीज़ नापनी है, तो हम मीटरिंग टेप के होते हैं. तो 2 टाइप के टेप होते हैं हमारे पास. ठीक है, ये डिफरेंट वेरियस लेंथ में अवेलेबल होते हैं, 1 मीटर, 5 मीटर, 10, 15, 100 मीटर्स तक. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. ये देखिए, ऐसे कोई कर्व डिस्टेंस है तो हम टेप से नाप लेंगे, इस वाली मेजरिंग टेप से. ठीक है, जैसे हम अपना वेस्ट नापते हैं. उसके बाद क्या है, अगर किसी की लेंथ नापनी है, जो टेलर यूज करते हैं, दैट इज मेजरिंग टेप. ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव द मेजरमेंट ऑफ मास. कोई चीज कितनी भारी है, उसमें क्वांटिटी कितनी है. ठीक है, सो दैट वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ अ mass. So that is known as mass. So what is the unit of mass? So the SI unit of mass, I have already told you, SI standard unit of mass होती है किलोग्राम, which is represented by small k and small g. ठीक है, so 1 किलोग्राम को आप कैसे डिफाइन करेंगे? 1 किलोग्राम वॉज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ सिलेंडर ऑफ प्लेटिनियम या फिर इरिडियम अलॉय. ठीक है, अलॉय विल डिस्कस लेटर. प्लेटिनियम या फिर इरिडियम अलॉय है जो केप्ट एट अ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर एट सर्वर नियर पेरिस. ठीक है,
तो आप क्या है 1 किलोग्राम को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं 1 kg वॉज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ सिलेंडर ऑफ प्लेटिनियम kept at the International Bureau of Weight. ठीक है, सो 1 लीटर है, अगर लिक्विड को नापना है तो हम लीटर यूज करते हैं, तो 1 लीटर इक्वल्स टू कितने होते हैं 1000 मिलीलीटर. ठीक है, ये देखिए अगर 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होंगे तो 1 मिलीलीटर कैसे होगा 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर हो जाएगा. मीन्स 1 मिलीलीटर कितना होता है 1000 का, अगर हमने 1 लीटर कोई भी चीज़ है हमारे पास उसके 1000 पार्ट कर दिए तो उसका एक पार्ट क्या होगा 1 मिलीलीटर, 1 पार्ट ऑफ 1000. ठीक है, सो इसके सब मल्टीपल्स क्या होते हैं, सब मल्टीपल्स मीन मल्टीपल एंड सब मल्टीपल यूनिट ऑफ मास. तो सबसे बिगर यूनिट ऑफ मास होती है क्विंटल. तो 1 क्विंटल इक्वल्स टू होता है आपके पास 1 क्विंटल इक्वल्स टू होता है आपके पास 1000 kg. ठीक है, 1 क्विंटल QUINTL लिखते हैं हम इसको, 1 क्विंटल इक्वल्स टू 1000 kg होता है. ठीक है, स्टिल बिगर यूनिट ऑफ मास इज मीट्रिक टन, उससे बड़ी मीट्रिक टन होती है. 10 क्विंटल मेक 1 मीट्रिक टन. सो दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम हियर. ओके, दीज 2 यूनिट. 1 मीट्रिक टन इक्वल्स टू 10 क्विंटल, और आपको पता है कि 1 क्विंटल में 100,000 kg होते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1000 kg. सॉरी 100 kg होते हैं, तो दैट इज 100 kg. ठीक है, 1 क्विंटल 1000 नहीं, 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg होते हैं. सॉरी, ठीक है, 1 क्विंटल इक्वल्स टू 1000 kg. ओके, तो 1 kg इक्वल्स टू, अभी हमने आपको बताया ना 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होते हैं. तो 1 ग्राम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/1000 kg, उसका 1000 पार्ट. ठीक है, मिलीग्राम ऐसे ही होता है, मिलीग्राम 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम में फिर 1000 मिलीग्राम होते हैं. तो 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम हो जाएगा. ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक आपको याद करना है. क्विंटल मतलब होता है 1 क्विंटल विच इज रिप्रेजेंट बाय 100 kg. मीट्रिक टन मीन्स उससे बड़ी यूनिट क्विंटल से. तो 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल्स होते हैं और 1 क्विंटल में 100 kg होते हैं. तो 1 मीट्रिक टन में कितने kg हो जाएंगे 100 into 10 दैट इज 1000 kg. ठीक है, ग्राम है दूसरी यूनिट सब मल्टीपल जिसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होते हैं. तो 1 ग्राम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/1000 kg. आपको बताया था ना हमने लास्ट वीडियो में, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा. 1 मिलीग्राम, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं. तो 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम हो जाएंगे, उल्टा छोटी यूनिट. ठीक है, ये देखिए इसकी FPS यूनिट होती है पाउंड, विच को हम LB से रिप्रेजेंट करते हैं, और CGS यूनिट होती है ग्राम. ये इन दोनों का कनेक्शन है दैट यू हैव टू लर्न. ठीक है, अब डिवाइस फॉर मास नापने के लिए हमारे पास कौन कौन से डिवाइस हैं आपने शॉपिंग में देखा होगा. जब भी आप कोई शॉपिंग करने जाते हैं, कोई भी वेट तोलने जाते हैं ग्रोसरी शॉप में, तो वी हैव बीम बैलेंस. एंड ग्रीन ग्रोसर शॉप में भी देखा होगा आपने, वेजिटेबल शॉप्स में बीम बैलेंस होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होते हैं. बीम बैलेंस जिसमें हम एक तरफ वेट रखते हैं और एक तरफ मास रखते हैं. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बहुत प्रिसाइज होते हैं, जो बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करते हैं. ठीक है, so this will discuss in the next video. Okay.